Okay, beta. So let's see. Basically, the questions of chemical equilibrium consist of two parts. Let's see. मैं यहाँ आपको एक question दिखाता हूँ. So if you look at these type of questions, there are some questions that typically based on the theoretical concept, like the shifting of equilibrium, basically the O levels concept. But the problem is that normally you guys like predict the correct shift of equilibrium, that either it's going to shift on right hand side or either it's going to shift on the left hand side. वहां तक तो correct होता है, but once it's come to the explanation, you're always making a mistake. Okay, make sure that if there is a effect on the equilibrium by changing the concentration, then you should explain it in a correct way, that the equilibrium will shift, let's say, right hand side, because the concentration or the amount of reactant increases. Okay, clear? If there is a shifting of equilibrium because of pressure, then you should correctly explain that the equilibrium shift towards right hand side because there are more number of particles or more number of moles on the reactant side. So on increasing pressure, higher से lower mole side पे shift होता है. ठीक है, clear? So ये theoretical part देखते हैं. Yes, they commonly ask the definition of a reversible reaction. So this is the region which is basically the definition of a reversible region. Then you should write down the correct definition. अब ये आसान सी लग रही है, लेकिन एग्जाम में इसमें भी error करते हैं. So the reaction that goes in both directions are the reversible reaction. They hardly ask about any example of it, but we know the Haber's and a contact process, an example of it. Okay, and then the concept of dynamic equilibrium. Yeah, it's very common that they ask the definition of a dynamic equilibrium. So the definition of reversible reaction, definition of dynamic equilibrium is very important. The condition in a reversible reaction at which the rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction. This is very important. So you can see this is the rate versus time graph. It is possible that they ask you to draw this graph, or they give you this graph and they ask you to label the axis for equilibrium reactions. Again, initially the rate of forward reaction is maximum because we have maximum amount of reactant present. As the reaction proceeds, the amount of reactant decreases because they are getting converted to product. And then in a similar way, at the same time, the rate of backward reaction increases because the product is being formed. So the rate of forward reaction decreases, the rate of backward reaction increases. And there's a condition at which the rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction. That's called the dynamic equilibrium. Now, this is a concentration versus time graph. It should be very clear that at dynamic equilibrium, the concentration of product and the concentration of reactant must be constant. बार बार कह रहा हूं कि और हर बार आपसे कहा है कि it's not necessary, there's no condition that the concentration of reactant and product are same. They are constant. Okay, there's very less chance that the equilibrium is established when the reactant and product are present in the same amount. Very less chance. Okay, clear? So this is the concentration versus time graph. The concentration of reactant, which is the blue line, you can see it decreases. The concentration of product increases, and this is a condition. This is the time or the condition at which the concentration of reactant and product become constant. This is called basically the dynamic equilibrium. They might ask you for 1 mark to label where the dynamic equilibrium exists in a concentration versus time graph where this graph is present in MCQ. If you remember, एक graph में उन्होंने एक MCQ में उन्होंने they asked this graph. ठीक है, clear? So there are some conditions for the dynamic equilibrium. Conditions, the first and the primary condition is that this is also called the property of equilibrium, condition of equilibrium. Okay, this is that a closed system is required for dynamic equilibrium. The system must be closed. That's the first condition. Second condition, the rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction, which is the definition. The third condition is the concentration of reactant and product are constant. These three are the fundamental conditions or the characteristic of an equilibrium. जब भी आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक लिखें, कंडीशन लिखें of dynamic equilibrium, तो बेटा प्लीज मेक श्योर कि आप जो है वो इनमें से कोई एक पॉइंट लिखेंगे. And which is the most important point is basically a closed system is required. Nothing should be going in or coming out of the system. And then the Lee-Chatlis principle, quite common. That's the third definition they normally ask, which is the definition of a Lee-Chatlis principle. That if the system is at dynamic equilibrium is disturbed by
change in any factor like change concentration, pressure or temperature, it will move in a direction to minimize the change. It could be any other language, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं. Concept ये होना चाहिए कि if the system dynamic equilibrium पे है, you disturb that system, it will respond to minimize that change. आपने reactant की concentration increase की, equilibrium will shift towards the product side, start making more and more product, start utilizing more and more reactant to regain the equilibrium. Okay, so these are the factors. Now this is basically the explanation. In the first paragraph, this is the explanation. Let's suppose if this is a reaction given and they ask you, they are adding more reactant. Okay, what should be the effect on the position of equilibrium? So आप बोलेंगे the equilibrium will shift towards product side or the right hand side, because on adding more reactant, there are the equilibrium will, because there are more reactant particles, they collide more frequency. बस आप ये बोलेंगे because on increasing reactant the equilibrium will shift towards the product side. ठीक है, clear? और removing product have the same effect. याद रखिएगा effect of concentration को इस one liner statement से याद रखिएगा, which is access towards deficiency. In terms of concentration, the equilibrium always move from the excess concentration side towards the deficiency. Let's suppose you are adding more product, तो product side पे excess हो गया ना, तो reactant side पे shift होगा excess से deficiency की तरफ. You are removing the reactants, अब reactant side पे deficiency हो गई, product side पे excess होगा towards reactant side. So equilibrium always shift towards the deficiency side. Effect of pressure, yes, higher mole side towards the lower mole side. ठीक है, इसकी सारी theoretical knowledge मैंने आपको दी थी, अभी मेरा सिर्फ concern statement से है. ठीक है, and if you remember this like bottom वाली जो picture है कि on increasing pressure higher से lower, on decreasing lower से higher, and there's no effect of on the position of equilibrium if you have the same number of moles on the reactant side and a product side. ठीक है, clear? I'm just moving bit quickly. Effect of temperature predict करना भी आसान है, इसकी explanation भी हमेशा पूछी जाती है. वो पूछेगा कि भाई this is the chemical reaction, you have an example of a Haber's process, overall enthalpy change is negative and they say and they are increasing pressure temperature, तो आप बोलेंगे the equilibrium will shift towards left hand side. याद रखिएगा endothermic requires high temperature, so when you increase the temperature, the equilibrium will shift towards the endothermic side. If the overall enthalpy change is negative, this negative basically represents the enthalpy change of a forward reaction. The enthalpy change of a backward reaction is exactly equal in magnitude with the opposite sign. याद रखिएगा एक बहुत लास्ट क्लास में भी इन एंथैल्पी चेंज मैंने इस पे बात करी थी. देखिए इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज -100 एंड -200 में -100 is a larger number, -200 is a smaller number, but once it's come to the enthalpy change, this minus and plus is not the sign of a magnitude. This is a sign of direction of energy. Minus means energy is coming out of the system, the reaction is exothermic. Okay, plus means the energy is going into the system, the reaction is endothermic. Let's suppose if you have two negative enthalpy values, -100 and -200. So -200 is more exothermic. Why? Because it releases 200 kilojoules of energy. Okay, that's clear. Now, if the overall enthalpy change is negative, the backward is, that's why a closed system में आपके पास equilibrium establish होता है. Let's suppose इस reaction को देखते हैं, अगर forward reaction 100 kilojoules की energy release कर रहा है, तो वो सारी energy backward reaction में absorb होनी चाहिए. There should be no difference of energy. अगर वो difference होगा, तो that energy must be either going out of the system, and if there is a deficiency, you must have to provide outside the system. तो फिर तो system close नहीं रहेगा ना. So within a system, the reaction, any reversible reaction is self-sufficient in terms of energy. जितनी रिलीज हो रही है सारी एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है, या जितनी फॉरवर्ड में एब्जॉर्ब होनी है बैकवर्ड उतनी ही रिलीज कर रहा है. एंड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट भी होना चाहिए और बैकवर्ड रिएक्शंस का रिएक्टेंट भी होना चाहिए. ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई the equilibrium on increasing temperature, the equilibrium shift towards the reactant side because the backward reaction is an endothermic reaction. ये आपको explain करना पड़ेगा. 1 mark आपके पास shifting of equilibrium के होंगे और other 2nd mark आपके पास होगा to explain कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो normally pressure और temperature की explanation पूछी जाए. Catalyst
क्लियर स्टेटमेंट है, वन लाइनर पूछा जाता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट ओनली हैव्स टू अटेन इक्विलिब्रियम early by equally speeding up the rate of forward reaction and the rate of backward reaction. ठीक है, कैटलिस्ट से क्या होता है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, जब जल्दी आ जाए तो वी कैन अप्लाई द ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन आवर फेवर. Okay, so make sure that you know that the catalyst do not have any effect on the position of equilibrium. लेकिन ये भी साथ साथ बताना चाहिए कि it equally speed up the rate of forward reaction and backward reaction, so equilibrium attain early. So this is basically the concept of equilibrium. Now, again अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है. मैं पहले केसी की एक्सप्रेशन लिखना आप सबको आती है, and I said many times that for any Kc expression, Kc is basically the equilibrium constant in terms of concentration. ठीक है, C का मतलब concentration. So you can write Kc either in Kc either for liquids or gases, for both. ठीक है, और जो second होता है Kp, which is the equilibrium constant in terms of partial pressure, it's only for gases. ठीक है, product over reactant है, coefficient become power. वही बात बार बार जो एम्फेसाइज होके लिखी हुई है बेटा यहाँ पर, these are the class lecture, that this square bracket in this Kc expression is basically representing the concentration in mole per dm cube. ठीक है, concentration को mole per dm cube में represent करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो it has to be a square bracket. ठीक है, अगर आप स्मॉल ब्रैकेट कोई कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे, then it's going to be a रॉन्ग केसी एक्सप्रेशन. और बीच में कोई प्लस का साइन नहीं होता भाई, मतलब 20 to 30% जो आपके मॉक एग्जाम पेपर से बेटा उसमें मैंने यहाँ पे प्लस साइन नजर आया है मुझे. दिस दे ऑल आर, मैं यहाँ बस याद रखो भाई केसी केपी में कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, जो कुछ है सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय the reactant concentration and the coefficient become power. अब ये तो coefficient को power बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम सिर्फ concentration ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा, but you just take the concentration, that this concentration do not consider the molar ratio of a balance equation, कि भाई 1 mole of A 2 moles of B के साथ रिएक्ट कर रहा है. अब ये तो फिर इसका मतलब हर केमिकल इक्वेशन के लिए केसी की एक्सप्रेशन एक जैसी हो जाएगी. ठीक है, तो इस मोलर रेशियो का क्या फायदा? तो बेसिकली वी आर नॉट यूजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, we are using the concentration term. इसको क्या कहते हैं? concentration term कहते हैं, in which the concentration, in which the molar ratio of a balance equation becomes the power. ठीक है, क्लियर? सो केसी की एक्सप्रेशन किसी भी इक्वेशन के लिए लिखनी आनी चाहिए. इस इक्वेशन में सारी गैसेस भी होती है, सारे लिक्विड भी हो सकते हैं. अभी मैं होमोजेनियस इक्विलिब्रिया की बात कर रहा हूँ, यानी ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन अ सिमिलर सेम केमिकल, लाइक सेम स्टेट सिंबल होगा सबका. ठीक है, फिजिकल स्टेट सेम होगी. सो आइदर सारी गैसेस हैं आप केसी लिख सकते हैं, आइदर सारे लिक्विड हैं आप गैस आप केसी लिख सकते हैं. एंड देन द यूनिट कॉन्सेंट्रेशन कैंसिलेशन, दिस स्क्वायर ब्रैकेट मींस मोल पर डीएम क्यूब. ठीक है, तो आप मोल पर डीएम क्यूब की यूनिट कैंसिलेशन कर लेंगे. केसी हैव अ डिफरेंट यूनिट एंड इट डिपेंड्स ऑन the chemical equation, and sometime all the unit get cancel out and the Kc has no unit. तो वो आपसे पूछता है कि explain why Kc has no unit, तो आप लिखेंगे because the number of moles on the reactant and the product side are same. ठीक है, so it get cancelled out. ये पूरी प्रॉपर बात लिखनी पड़ेगी. सिर्फ बच्चे लिखते हैं इट गेट कैंसल्ड आउट, ये ठीक नहीं है, क्योंकि नो यूनिट का मतलब तो यही है ना कि कैंसिल आउट हो चुका है. लेकिन क्यों है? बिकॉज you have the same number of molar ratio or same stoichiometric ratio on the reactant side and on the product side. ठीक है, clear? And then equilibrium in terms of pressure, in which we are using a partial pressure. And you know from the states of matter that the partial pressure is basically the mole fraction multiplied by total pressure. Mole fraction कैसे निकलता है? Moles of gas A divided by total moles into total pressure. आपके पास partial pressure आ जाता है. The sum of partial pressure of all the individual gases must be equal to the total pressure. ठीक है ना, अभी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी इसको रिवाइज किया था. ओनली फॉर गैसेस है, लिक्विड्स के लिए आप केपी नहीं लिख सकते, प्रेशर सिर्फ गैसेस का होता है. एंड इस फॉर्मूले में सिर्फ याद रखिएगा, दिस ये जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ है बेटा, दिस इज बेसिकली the partial pressure of gases. Sorry, this symbol PA is basically represent the partial pressure. Small p hota hai because the like the capital P represent the total pressure, so it has to be a small p. और subscript में gas का नाम लिखा होगा, NH3SO2 O2 whatever it is, and there is a small bracket. If you do not use any bracket, अगर आप bracket ना भी use करेंगे तो KP की expression acceptable है. But
केसी के एक्सप्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी है। यहाँ तो आप पार्शियल प्रेशर का पी लिख रहे हो ना बेटा, इसलिए यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट अगर ना भी यूज करें तो चल जाएगा। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ही है और आपने कोफिशिएंट को पावर बना दिया, एंड दैट्स इट। नॉर्मली द यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर और द प्रेशर इज ATM, atmosphere, pascals or kilopascal. Whatever the unit of total pressure is given, just put that unit, do the unit cancellation, and you will get the unit of Kp. ये वो sometime 1/Kp आएगा, 1/Kp square आएगा, whatever it is, ठीक है। sometime Kp square आ जाएगा या एटमॉस्फेरिक स्क्वायर आ जाएगा, whatever it is. एंड अगेन केपी के केस में भी ऐसा हो सकता है कि केपी हैज नो यूनिट, ना कोई यूनिट ना हो, यूनिट गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है बेटा। सो दिस SO2 के लिए लिखी है, मैंने लिखा है यूनिट ऑफ केपी। इस केस में नीचे मोल्स 3 हैं, ऊपर मोल्स 1 है, कैंसिल आउट हो गए, 1/1/1 kPa या 1 ATM, व्हाटएवर द टोटल प्रेशर इज गिवन ऑफ केसी एंड केपी इज सॉरी कर रहा है, ठीक है। फॉर ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन केसी एंड केपी बिकॉज एंडोथर्मिक रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, बढ़ाने से कम हो जाता है, टेम्परेचर कम करने से, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट देख देखो होगा क्या। दिस इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स, रिएक्टेंट ज्यादा ऐड कर दिए हैं, रिएक्टेंट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो वंस यू ऐड केसी और केसी वैल्यू क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज केसी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यू हैव टू वेट until the equilibrium shift and the new equilibrium is established, ठीक है, जब आप केसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ए और बी ऐड किया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना शुरू हुआ, यू हैव टू वेट अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। एट न्यू इक्विलिब्रियम द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट चेंजेस, दोनों चेंज हो जाएंगी, द कंपोजिशन रिएक्टेंट की भी चेंज हो जाएगी और प्रोडक्ट की भी चेंज हो जाएगी, लेकिन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी रिमेन सेम। लेट्स सपोज द केसी की पहले वैल्यू, बल्कि नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, देखो let's suppose that before shifting the equilibrium the value of Kc is 1/2, यानी amount of product 1 था, reactant 2 था, you added more reactant, जितने reactant add किए उससे proportion में product form होगा to get the equilibrium, again to reach the equilibrium, again at new equilibrium the amount of product increases, amount of reactant also increases, the ratio remains same which is 1/2। in a similar way इसमें भी यहाँ भी ratio same है, तो आप देखें the Kc and Kp remain same, only the equilibrium composition changes। equilibrium composition का मतलब क्या होता है, the amount of reactant और amount of product at equilibrium। ठीक है बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा। जी बेटा थोड़ा सा जो है वो इशू आ रहा है, मैंने व्हाट्सएप अभी चेक किया तो काफी सारे मैसेजेस आए हुए थे कि वॉइस मेरी लैग कर रही है, इंटरनेट इशू चल रहा है बेटा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलो गुड, जानी पहचानी आवाज लग रही है, मास्क तो नहीं है? ठीक है जी, तो आई होप कि मैंने ये इफेक्ट ऑफ एंड सेम वुड बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट याद रखना बेटा, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ डिफरेंट थिंग,
इफेक्ट ऑन केसी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंपोजिशन में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। सो केसी इज नॉट इफेक्ट बाय कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंजेस, ठीक है। सेम इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, केपी इज नो। इफ केसी एंड केपी इज ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, और मैंने इसका शॉर्टकट आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इफ यू इंक्रीज for all endothermic reaction, if you increase the temperature, the Kc increases, decrease करने पे, ठीक है। exothermic temperature बढ़ाओगे Kc कम होगा, temperature कम करोगे Kc बढ़ जाएगा। and same catalysts have no effect on the value of Kc or Kp, ठीक है। it only helps to attain equilibrium early. तो I hope कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। theoretical part पहले cover up करते हैं, then we will move towards the calculation part, ठीक है। heterogeneous equilibrium is basically when you have reactants and product in a different physical state. मुझे ज्यादातर एक feeling ये है कि as they ask so many questions in the previous years about the homogeneous equilibria, they might ask you a question about the heterogeneous equilibria either in P2 और P1. तो जरा ध्यान से इसको एक दफा रिवाइज कर लीजिए। लेकिन आई सेड मेनी टाइम, नो मैटर आपको इक्विलिब्रिया बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन दिस 45 1 hour सेशन गिविंग यू अ क्विक रिवीजन इन सारे टॉपिक्स का। मैंने यही मेरा प्लान था, इसको मैं लेके चला हूँ, ठीक है। और जितना टाइम है हम उसी पे चल रहे हैं, एंड देन ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से थोड़ा सा इन चीजों का अंदाजा हुआ। आई विल टेक वन सेशन इंशाल्लाह टुमारो एज वेल। क्लियर? तो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया इक्वेशन विद द डिफरेंट फिजिकल स्टेट, एक की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, केसी हो केपी हो जो भी हो, इक्विलिब्रियम पे सॉलिड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। देयर इज नो सॉलिड इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ केसी और केपी, वो तो इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब अगर आपके पास सॉलिड के साथ लिक्विड है तो यू ओनली टेक लिक्विड, मेक द कोफिशिएंट पावर, ठीक है। और सॉलिड को आप क्या करोगे? सॉलिड को आप इग्नोर करोगे, ठीक है। सॉलिड के साथ गैस होगा, केसी लिखना हो तो भी गैसेस को लेंगे सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यू हैव टू राइट डाउन द केपी, जस्ट टेक गैसेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉरी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर लिक्विड और गैसेस का केस हो, ठीक है, ये सिर्फ हेट्रोजीनियस के लिए ये बात वैलिड है, याद रखिएगा। वरना आप गैसेस के लिए केसी केपी दोनों लिख सकते हैं, एंड फॉर लिक्विड यू कैन राइट ओनली केसी, ठीक है। लेकिन if you have a case of a heterogeneous equilibria equation in which a gas and a liquid is involved, सॉलिड होगा तो उसे तो इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको केसी लिखना है तो आप सिर्फ गैसेस को, सिर्फ लिक्विड को लेंगे। इफ यू हैव टू राइट डाउन केपी तो आप सिर्फ गैसेस को लेंगे। बार बार कह रहा हूं कि दिस इज ओनली इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम व्हेन यू हैव अ डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग है कि दिस इज अ एरिया, इफ they ask this one in an exam, there is a possibility, there is a chances of an error, तो make sure that you emphasize on this one कि इसको अच्छे तरीके से आप समझ के करें, ठीक है। क्लियर? एंड देन these are the some calculations, और हम अब आते हैं सर आवाज नहीं आ रही। कैलकुलेशंस की तरफ, ठीक है। और कैलकुलेशन से पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे। आपके पास जो है वो एसिड बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस गया, फिर A2 में गया, व्हाटएवर इट इज, लेकिन दिस इज स्टिल देयर, और आपने पास पेपर में देखा होगा। आसान से वन लाइनर स्टेटमेंट है, ऑल H पॉजिटिव डोनर्स आर एसिड एंड H पॉजिटिव एक्सेप्टर्स आर base. The concept of conjugate acid and a base is important as this is the equation given. Now, whenever they give you any random chemical equation, reversible equation that include a weak acid की इक्वेशन हो या वीक बेस की इक्वेशन हो, तो आपने सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू जस्ट लुक एट द फॉरवर्ड रिएक्शन फर्स्ट। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को देखिए। तो आपने देखा NH3 गेटिंग कन्वर्टेड टू NH4 पॉजिटिव, इसका मतलब NH3 ने क्या, H2O गेटिंग कन्वर्टेड टू OH नेगेटिव, यानी NH3 ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया ना OH ने H पॉजिटिव डोनेट किया। तो NH3 इज एन एक्सेप्टर, H2O इज अ डोनर, H positive acceptor is a base and donor is an acid. Forward reaction के acid base reactant confirm होगा, ठीक है। Now look at the backward reaction. अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज चली गई। अब बारी बारी देखना है बेटा, अलग अलग बैकवर्ड रिएक्शन।
NH4 positive is getting converted. आ गई? So let me just change the internet. ठीक है, एक सेकंड रुकना, just wait for a while. Actually, I changed my device position, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि disturbances रूम में है. बता दो भाई ताकि मैं आगे चलूं. सर आ रही है, अब सही है। आप सही है ना, मुझे बता देना प्लीज. महत. Okay, so this is the case basically, and the acid and a base of a backward reaction are called conjugate acid and conjugate base, and you have to identify the conjugate acid base pair. जैसे water इसका base OH negative, ammonium ion उसका base NH3. तो आपको सिर्फ पेयर फॉर्म में लिखना होगा. And this is another equation, आपको नजर आ रहा है, CH3COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, डोनर एक्सेप्टर आपने मार्क किया एसिड बेस, ठीक है, और आपने उसके बाद उसको लिख दिया. वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड अ बेस. दीस आर द एग्जांपल्स. इन एग्जांपल्स में क्लियर है, देखो ऊपर वाले में वाटर इज एन एसिड, नीचे वाले में वाटर इज अ बेस. सो दिस इज बेसिकली a case in which what is an amphoteric in nature, ठीक है. And then the acid base titration curve. There are basically 4 different type of acid base titration curve. अब टाइट्रेशन कर्व है क्या? देखो, नॉर्मली वी फिलिंग द ब्यूरेट विद द बेस और एन एसिड, और हमने पेपेट आउट करते हैं. वी ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, स्टार्ट टाइट्रेटिंग व्हेन ऑल द एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क और टाइट्रेशन फ्लास्क गेट यूज्ड अप. तो फिर इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है क्योंकि आपका सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाता है. मीन आपका सोल्यूशन बेसिकली एसिडिक से न्यूट्रल होके डायरेक्टली अल्कलाइन हो जाता है. देखिए याद रखिएगा, इंडिकेटर कलर चेंज करता है when the entire solution is slightly alkaline in nature or in case slightly acidic in nature, vice versa. ठीक है, क्लियर. तो exactly जब solution neutral होता है उस वक्त इंडिकेटर कलर चेंज नहीं करता. तो जो आपकी ब्यूरेट रीडिंग होती है, that burette reading is basically the reading in which the base is slightly acidic or base is slightly excess होता है. ठीक है, क्लियर. So yes, these are the 4 types of acid base titration. क्लियर. और हमारे पास सबसे पहला केस था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का. अब यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी बेटा, माइट बी पॉसिबल. यू आर प्रोवाइडेड, देखें ये जो आपके पास एक्स एक्सेस पे है, which is base in this case, x axis पे हमने बेस लिया है. इट कुड बी एसिड एज वेल. अगर इसमें एसिड होगा, रॉजर नॉरिस में ये ग्राफ वाइस वर्सा बने हुए हैं. ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेस को ब्यूरेट, सॉरी एसिड को ब्यूरेट में लिया है. तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है 13 से और 1 पे खत्म होता है. सिर्फ इन्वर्ट हो जाएगा ग्राफ. ठीक है, क्लियर. अच्छा, जो भी यहाँ पर है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है एंड पॉइंट की, ये किस वॉल्यूम पे बनानी है. व्हाट वॉल्यूम यू हैव टू ड्रॉ दिस, एंड दिस वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड अ बिट ऑफ कैलकुलेशन. बहुत आसान सी कैलकुलेशन है. देखें कैसे. आपको वॉल्यूम ऑफ एसिड गिवन है, व्हिच इज 25 सेंटीमीटर का, जो आपने पिपेट आउट किया है. यू हैव द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मस्ट बी गिवन, कंसंट्रेशन ऑफ बेस मस्ट बी गिवन. ये सारी तीनों चीजें गिवन होंगी. वॉल्यूम एट द एंड पॉइंट यू हैव टू कैलकुलेट. कैसे करेंगे? यू हैव द कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ HCl. ठीक है, C is equal to N/V. अप्लाई कीजिए एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. एसिड के मोल्स निकाल लीजिए. ये तो आसान है ना. कंसंट्रेशन भी गिवन होगी, वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब होगा. यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. नाउ फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अप्लाई द मोलर रेशियो. HCl and sodium hydroxide 1:1, sulfuric acid and sodium hydroxide 1:2, whatever the molar ratio is. Apply the molar ratio, find out the moles of base. ठीक है, बेस के मोल्स आ गए आपके पास. अब बेस का वॉल्यूम निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. ठीक है, अप्लाई C is equals to N/V and find out the volume. Whatever the volume is, उसी वॉल्यूम पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, जस्ट लिसन अगेन. कुछ बच्चों ने क्वेरी भेजी थी कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा. You are provided with the concentration and the volume of one reagent. In this case, acid की concentration और volume दोनों given है. Find out the number of moles by applying the formula. Concentration का moles आ जाएंगे, वैलेंस इक्वेशन से मोलर रेशियो लगा के बेस के मोल्स निकाल लेंगे.
ठीक है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसी वॉल्यूम पे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. नाउ if this is a case of a strong acid and a strong base, the graph should start from the line which is should start from the pH 1. ठीक है, हम क्या करते हैं, instead of adding an indicator we add the knob of a pH meter. तो इनिशियली जब आपने कोई बेस ऐड नहीं किया है तो आपके पास pH कितनी आएगी, the pH which is the pH of a strong acid. You start adding base, it getting neutralized, pH almost 1 रहेगी. जब सारा एसिड खत्म हो जाएगा और बेस का एक ड्रॉप भी एक्सेस में होगा तो जम करेगी pH और फिर एंड पॉइंट, फिर जम जो है वो pH करके स्ट्रॉन्ग बेस पे चली जाएगी विच इज 13 और 14. अच्छा, दिस ग्राफ मैं थोड़ा सा मार्क कर दूं, दिस ग्राफ इज क्वांटिटेटिव, यानी वो वैल्यूज देखेगा कुछ पॉइंट्स पे. एक पॉइंट आपने कहां से स्टार्ट किया, दूसरा पॉइंट कहां पे खत्म किया. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में एट व्हाट वॉल्यूम यू हैव ड्रॉन दिस स्ट्रेट लाइन, क्वांटिटेटिव का मतलब वैल्यू देखेगा और आपने एंड पॉइंट किस पीएच पे मार्क किया है. दीज आर द रीजन वेयर दे लुक एट द वैल्यू. द शेप ऑफ द ग्राफ आपने देखा बुक में थोड़ा सा कर्व होके जा रहा है, मैंने स्ट्रेट बनाया, मेरा कर्व होके जा रहा है, बुक ने स्ट्रेट बनाया, डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आप स्केल रख के भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ इट विद अ सिंपल पेंसिल. ये वैल्यूज मार्क होंगी. ठीक है, और इन वैल्यूज की बेसिस पे आपके मार्क मिलेंगे. इफ यू मेक अ मिस्टेक हियर इट विल पेनलाइज. अच्छा, ये भी रेंज है, आप 0, 1, 2 कहीं भी स्टार्ट कर, 1.5 से स्टार्ट कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच की रेंज में स्टार्ट करना है, यू हैव टू फिनिश एट द रेंज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, now this is a straight line and the midpoint of this straight line is basically the end point. And ये जो straight line है, this is a region which is the range of an indicator. ठीक है, आपको कुछ indicators given होंगे with the range. वो indicator जिनकी range यानी any indicator that changes color from 3 till 6 can be used because 3 and 6 इसकी range में है. ठीक है, any indicator that changes color from 8 till 12 could be used because 8 till 12 में ये इस स्ट्रेट लाइन की पीएच की रेंज में जिन जिन इंडिकेटर के पीएच आते हैं, यू कैन यूज दोज इंडिकेटर्स. ठीक है, सो दिस अ वाइड रेंज ऑफ इंडिकेटर एंड यू हैव अ वेरी शार्प एंड पॉइंट इन अ केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. इन अ सिमिलर वे, if you look at the graph, it's quite clear. It's a case of a strong base with weak acid. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4, 5 समवेयर एंड देन स्ट्रेट लाइन बनी. ये भी थोड़ा सा आप कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, एंड यू कैन सी एट द एंड पॉइंट the pH is greater than 7. It has to be greater than 7, 8, 9, 10 कहीं भी आपकी आ सकती है. और ये एंड पॉइंट कैसे मार्क होगा, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इसका मिड पॉइंट इज बेसिकली द एंड पॉइंट और द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट. ठीक है, नाउ यू कैन सी द रेंज ऑफ इंडिकेटर डिक्रीजेस. नाउ एनी इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर from pH 0 till 3 cannot be used. 0 till 3 क्योंकि 0 till 3 से स्ट्रेट लाइन की रेंज से बाहर है. 3 till 5 कैन नॉट बी यूज बिकॉज 3 रेंज से बाहर है. yes, 4 till 13 जितने भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं बिटवीन 4 till 13 कैन बी यूज. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू हैव टू. नाउ नेक्स्ट वन, you can see, look at the graph. This is the graph of a strong acid and a weak base, endpoint and an acidic medium. अभी चार ग्राफ हैं, especially the graph number 1 and the graph number 2. These graphs are important. ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा रिवाइज करने हैं. ठीक है, क्लियर. And then this is the case of a weak acid, weak acid, weak base. में end point is very difficult to locate the end point. क्या हुआ? It is very difficult to locate the end point. ठीक है, that's why technically, experimentally, the weak acid and the weak base titration is very difficult to perform. Normally हम नहीं perform करते, इसको किसी और method से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है. समटाइम बल्कि कुछ जगहों पे कुछ टीचर ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, इसका ग्राफ भी नहीं होगा. बट यस, वी डू हैव दिस ग्राफ और ये ग्राफ होता है. Theoretically this graph is possible. Technically, in terms of experiment, getting this graph is very difficult. And end of the end point 7 पर आएगा. ठीक है, लेकिन pH की इंडिकेटर की जो रेंज है वो बहुत नैरो हो जाएगी. एनी इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर फ्रॉम 6 till 7 or 5, yes, 6 till 7 or 6 till 8 can be used. ठीक है, clear. And this is basically something about the indicator. थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. Indicator is basically कुछ ऑर्गेनिक डाइज होती है एंड दीज ऑर्गेनिक डाइज हैव अ डिफरेंट कलर इन अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड इन आयनाइज्ड फॉर्म. यानी जब ये बिफोर आयनाइजेशन इनका कलर कुछ और होता है, आयनाइजेशन के बाद इनका कलर चेंज हो जाता है. दैट्स व्हाई इंडिकेटर चेंजेस कलर. लेट्स सपोज
if I add this particular indicator HLN से जिसे रिप्रेजेंट किया है in base, अगर मैं इसे बेस में ऐड करूंगा, बेस क्या करेगा, OH पॉजिटिव को this H पॉजिटिव को यूज अप कर लेगा, है ना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड, you have more Ln नेगेटिव, तो आपका जो इंडिकेटर है, जो आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, तो आयनाइज फॉर्म का कलर आपको नजर आएगा. In a similar way, if you add the same indicator in an acidic medium, means you have more H positive in a system, equilibrium will shift towards left hand side, unionized form increase हो जाएगी, इंडिकेटर का वो कलर होगा जो unionized फॉर्म में होता है. ठीक है, that's basically the logic of an indicator. इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा. ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम की वजह से ये सारी स्टोरी. They might ask you about what is an indicator. They might ask you about how indicator works. So आप लिखेंगे indicator have a different color in a unionized form and in a ionized form. ठीक है, on adding an acid the equilibrium will shift its position and the color changes. ये example भी journal example देके भी आप इसे explain कर सकते हैं. These are some indicator with their range and a color change. याद नहीं करने, ठीक है, बिल्कुल भी याद नहीं करने. रेंज आपको गिवन है एंड बाय जस्ट बाय लुकिंग. फिनोल्फथलीन आप वीक एसिड वीक बेस में यूज नहीं कर सकते. फिनोल्फथलीन आप यहाँ भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज 8 फिनोल्फथलीन का कलर चेंज किया है बेटा 8.2 से 10. यू कैन सी आउटसाइड दिस स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना 10, so it means that you cannot use phenolphthalein here. ठीक है, यहाँ पर आप कौन से यूज कर सकते हैं, इनमें से आप मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं इन दिस केस. ठीक है, यू कैन यूज 3 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग है, तो यू कैन यूज मिथाइल ऑरेंज. ठीक है, बस ये येलो लाइन की रेंज में आपके पास आना चाहिए. तो दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट. आई ट्राइड माय बेस्ट केस 30-35 मिनट्स में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया जाए. आई नो इट्स डिफिकल्ट कि जिन बच्चों का रिवीजन नहीं है, अब तो खैर वो टाइम नहीं है. यू मस्ट हैव अ गुड रिवीजन ऑफ दिस. सबका होना चाहिए, ये मेरी अजम्पशन है, अल्लाह करे अजम्पशन ठीक हो. ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आपको एक क्विक रिवीजन मिल गया उन सारे बच्चों को जिनको टॉपिक अच्छा भी आता था. टाइट्रेशन कर्व एक एक बार प्रैक्टिस के लिए घर में जरूर ड्रॉ कीजिएगा बेटा. एंड आई रिकमेंड कि ये तो वो केस है ना जिसमें आपने ब्यूरेट में बेस को लिया है. ब्यूरेट में एसिड वाला जो केस है दैट्स प्रेजेंट इन अ बुक, रॉजर नॉरिस में है. वो ये ग्राफ बिल्कुल फ्लिप हो जाता है. ठीक है, दिस ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम 13 नाउ और 4 पे खत्म होगा. ठीक है, यानी अगर मैं इसी अपनी डायग्राम को थोड़ा सा खराब कर दूं तो या रेड से वाला रीजन में ड्रॉ. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, दिस रेड लाइन इज द ग्राफ व्हेन यू आर टेकिंग अ बेस इनटू अ पिवट आउट करेंगे और जब एसिड को आप लेंगे किसमें, ब्यूरेट में. ठीक है, तो वाइस वर्सा. बुक से एक दफा देख लीजिएगा, बुक में इंडिकेटर भी है एंड दिस थ्योरेटिकल पार्ट इज प्रेजेंट इन अ बुक. थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा किस टॉपिक में. ठीक है, क्लियर. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व इन दिस वन इन टर्म्स ऑफ केसी एंड केपी बोथ. एक कैलकुलेशन होती है बेटा बहुत आसान सी. वो कैलकुलेशन क्या है, वो कैलकुलेशन ये है कि यू आर प्रोवाइडेड विद आइदर, हाँ, यू आर प्रोवाइडेड विद कॉन्सेंट्रेशन. जैसे यहाँ पर है equilibrium concentrations given होंगी, they ask you to write down the expression of Kc and they ask you to write down the value, calculate the value of Kc. तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट equilibrium concentration plug in करेंगे and get your answer. ठीक है, आसान है. Kc जैसे एक क्वेश्चन है, इसी तरह से Kp में पार्शियल प्रेशर गिवन होगा, आप Kp की एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्लग इन ऑल द पार्शियल प्रेशर वैल्यू, गेट योर आंसर एंड राइट डाउन द करेक्ट यूनिट ऑफ Kp. ठीक है, क्लियर. सिमिलर वे दिस इज अ क्वेश्चन, ये मैंने कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं. ठीक है, क्लियर. दिस अनदर पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है, जिसमें Kc और Kp इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन. देयर आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेसिंग इशू इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है, और इसमें ही इशू क्रिएट प्रॉब्लम हो करता है स्पेशली Kp में जब आपको पार्शियल प्रेशर और मोल्स निकालने होते हैं एट इक्विलिब्रियम. सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस वन. एक क्वेश्चन पिक करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये सारे तकरीबन क्वेश्चंस में कुछ एंथैल्पी के भी पार्ट है बेटा, वो हम कर चुके हैं सारे. we just go through the recent one.
ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह के क्वेश्चन हैं, ये तो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन 22 वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड, यस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, इट बिकम लेस स्टेबल, ये आपने वहां पे कर लिया होगा। दिस इज इक्विलिब्रियम पार्ट, ठीक है। केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है, यू कैन सी ऑल गैसेस आर इन्वॉल्व, बट एज आई सेड यू कैन राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड देन यूनिट लिखना है, देयर इज नो यूनिट, तो यहाँ पर यूनिट कैंसिलेशन हो जाएगी। यूनिट गैस के केस में भी मोल पर डीएमक्यू भी होगा। क्वेश्चन ये है, कैन यू क्लियरली, पहले तो हम यहाँ केसी वैसे ही लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, स्टेट सिंबल भी लिखेंगे आप, गैस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 गैस, ठीक है, क्लियर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ, और फिर यूनिट कैंसिलेशन में आप बकायदा यूनिट कैंसिलेशन करेंगे। अब सवाल ये होता है कि हम सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आई सेड मेनी टाइम एंड सेइंग इट अगेन, प्लीज डू द यूनिट कैंसिलेशन। इफ यू राइट इट डायरेक्टली देयर इज अ चांस दैट यू माइट मेक एन एरर इन दिस वन, ठीक है। तो अगर आप यूनिट कैंसिलेशन करेंगे तो जो एरर के चांसेस है वो भी आपके पास खत्म हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा केसी हैज नो यूनिट इन दिस केस बिकॉज द मोल्स आर इक्वल, क्लियर। प्रेशर का इफेक्ट पूछ रहा है वो, क्लियर। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, रीजन भी लिखेंगे साथ में, बिकॉज दिस इज वर्ड फॉर 2 मार्क्स ईच, तो यू हैव टू राइट डाउन द शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, और क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर आर मोल नंबर ऑफ मोल्स on the right side, left side, whatever it is. यहाँ लिखेंगे there's no effect of pressure, there's no effect of pressure on the position of equilibrium, और फिर reason लिखेंगे because the number of moles on the reactant side and the product side are equal. Temperature enthalpy इन्होंने बता दिया होगा इसका, ठीक है, कि एंथैल्पी चेंज इसका एक्सो है या एंडो है, ये इन्होंने बताया होगा। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अब देखो यहाँ कहीं साइन नहीं लिखा हुआ, लेकिन यू कैन क्लियरली सी दैट द वैल्यू ऑफ Kc at 140 at 500 is 140 and 650 पे कितनी है 59, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू कम हो रही है। दिस मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, means the forward enthalpy is exo, the backward is endo. तो sometime इस तरह से छुपा के इन्होंने एंथैल्पी की वैल्यू दी होती है, ठीक है। केसी की वैल्यू से आपको क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। अब इधर आते हैं, इनिशियल मोल्स गिवन है बेटा, बहुत आसानी सी बात है। अब इक्वेशन के नीचे यही मेथड है, आप एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे एंड वी अज्यूम दैट x be the number of moles of the reactant converted to product at equilibrium, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इसमें से x कम हो जाएगा और यहाँ पर x बढ़ जाएगा, ठीक है, as these are the 2 moles. So when x moles of hydrogen react with x moles of iodine, it should make 2x moles of hydrogen iodide, ठीक है। तो x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मोलर रेशियो रिएक्टेंट में से हमेशा माइनस होगी, अगर इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में हमेशा एड अप होगी। तो इक्विलिब्रियम पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी मोल्स की, हाइड्रोजन की इतनी आ जाएगी, आयोडीन की भी इतनी ही होगी, ठीक है, और इसकी होगी 2x, क्लियर। आप केसी की एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखोगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 माइनस x, यहाँ एक और पॉइंट क्लियर करना है मुझे, माइनस x, ठीक है। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो केसी की वैल्यू और किस टेम्परेचर पे इसने कहा है आपको, 650 पे, एंड द वैल्यू ऑफ केसी एट 650 इज 59, ठीक है। सो लेट्स डू 59 is equals to 2x divided by 0.02 minus x का होल स्क्वायर, एग्रीड। हमेशा याद रखिएगा बेटा, इस तरह की कैलकुलेशन में जब भी आपको मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालने होंगे, इट्स ऑलवेज अ होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर को खत्म करने के लिए यू हैव टू टेक अ अंडर रूट ऑन द अदर साइड, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x, अब तो आसान है ना, अंडर रूट ले लिया, 0.02 माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। नाउ x की वैल्यू यहाँ पर एडअप करके मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिखने हैं अलग से जब आपका आंसर कंप्लीट होगा, मोल्स ऑफ आयोडीन लिखने हैं जब कंप्लीट होगा, और मोल्स ऑफ हाइड्रो। तो प्लग इन द वैल्यू ऑफ x बैक अगेन इन दिस वन एंड कैलकुलेट द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये की पॉइंट याद रखिएगा कि इट ऑलवेज whole square. It is not possible as per Cambridge instruction that this calculation required a quadratic solution. Quadratic तक बात कभी भी नहीं जाएगी, ना जा सकती,
ये मेरी गारंटी है, हमेशा होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, केपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सर है जो बच्चों, जी बोले बेटा। सर मैं कह रहा था इस केस में तो आपने बोला कि इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो हम जो रिएक्टेंट साइड में माइनस कर रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में प्लस। अगर सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा होता फिर एक्स वाली कैलकुलेशन में कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो मोल्स आपको सेपरेटली गिवन होंगे, फिर वो आपको एक्स की नहीं, वो उन मोल्स को ही प्लस माइनस करना होगा। एक्स वाले केस में हमेशा इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा, हमेशा रिएक्टेंट में से माइनस करना है, हमेशा प्रोडक्ट में एड अप करना है। ठीक है, वो जो केस है वो एमसीक्यूज में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा नहीं गया। ये भी एक्स वाला केस है, आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन है, ओके okay, this is the case. देखिए, you have a nitrogen plus hydrogen 3 N2 plus 3 H2 forming 2 NH3। हेबर्स प्रोसेस की इक्वेशन इस जमाने में ऐसे सिलेबस का पार्ट भी थी, लेकिन फिर भी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद होनी चाहिए। इट्स ओ लेवल्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, इनिशियल मोल्स आपको क्या गिवन है, पढ़िए। इसने कहा एट अ प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर गिवन, इसको छोड़ देते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी बेटा, क्या दबा दिया मैंने, यस ओके। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी, 1.00 was mixed with 3 moles of hydrogen, 3.00। ठीक है, did this say anything about ammonia? No, it means that initially the ammonia is 0। अगर ammonia भी initially, it is possible that they have some product initially present, तो वो बोलता 1 mole of nitrogen mixed with 3 moles of hydrogen and 2 moles of ammonia। तो इसका मतलब इनिशियली अमोनिया भी प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए भी जस्ट। ठीक है, तो इनिशियल मोल्स आ गए। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम बात करते हैं। इसने कहा द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर फाउंड टू कंटेन इतने मोल्स ऑफ अमोनिया। इसने कहा अब एट इक्विलिब्रियम अमोनिया कितना है बेटा, 0.300। एग्री? अब मुझे पता लगाना है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितना बचा हुआ होगा। पहले ये पता लगाते हैं कि 0.3 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन यूज्ड अप होना चाहिए। सबसे आसान तरीका है, देखो, अमोनिया आपके पास है और नाइट्रोजन आपको पता लगाना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नाइट्रोजन और अमोनिया का मोलर रेशियो निकाल लें, विच इज 2:1। अब ये पता लगाएं कि 0.300 के लिए कितना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कितना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगा, तो आसान सी बात है कि आप जो है वो 0.3 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0.15। क्लियर? इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन कितना बचा हुआ होगा, 1 में से 0.15 माइनस हो जाएगा जो कि यूज्ड अप हो गया, और बाकी आपके पास बचा हुआ होगा। ठीक है, सही है जी। अब जरा बात करते हैं हाइड्रोजन की और अमोनिया की, NH3 और हाइड्रोजन। द मोलर रेशियो इज हाइड्रोजन 3 है और अमोनिया 2 है। अब 0.3 अमोनिया बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन यूज्ड अप हुआ होगा, x, यानी आप 0.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.45। यानी 3 मोल्स में से 0.45 यूज्ड अप हो गया होगा। ठीक है, तो बचा हुआ कितना होगा, 2.5। So these are basically the moles present at equilibrium for nitrogen, for hydrogen, and यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, so नाइट्रोजन के कितने हैं 0.85 और हाइड्रोजन के कितने हैं 2.55।
सही, क्लियर? कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? NT यानी टोटल मोल्स हैं आपके पास 0.85 प्लस 2.55 प्लस 0.300। These are the total number of moles at equilibrium. ठीक है, 0.85 plus 2.55 plus 0.300. ठीक है, so 3.7. Clear? So आपको partial pressure of NH3 निकालना है, means moles of NH3 divided by total moles multiply by total pressure, which is 2.00 into 10 power 7. Then you will get the partial pressure of NH3. तो partial pressure of NH3 आपके पास आ जाएगा। सॉरी, कितना आएगा कोई बता सकता है मुझे? बेटा 1.6 exponent 6 प्लस 6 बेटा, ठीक है, परफेक्ट, सही है। सो दैट्स हाउ, बस ये की पॉइंट है बेटा, ये वो एरिया है जहां मेजर बच्चे इशू करते हैं। मुझे आज मेरा फोकस जो है वो यही था कि आपको किसी तरह एक दफा रीएम्फसाइज करवाऊं कि आपको इस पे जो है ना वो थोड़ा सा फोकस करना है कि हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो आसान है। देखो उसने पार्शियल प्रेशर दे दिए, ये तो आसान है ना। दे प्रोवाइड यू द पार्शियल प्रेशर, जस्ट राइट डाउन द केपी वैल्यू, प्लग इन दीस वैल्यू एंड गेट योर आंसर। जब ये 1 मार्क है, आप देखिए यहाँ पे ये 5 मार्क्स का पूछा है उसने, एक छोटी सी कैलकुलेशन। ठीक है, total pressure given था because they have to ask the partial pressure, that's why the total pressure is given. Initial moles of nitrogen is 1, hydrogen is 3 and ammonia is 0. At equilibrium the moles of ammonia was given. So यहाँ पर मैंने मोलर रेशियो अप्लाई किया और मुझे पता लगाया कि 0.3 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन यूज अप हुआ होगा और कितना नाइट्रोजन यूज अप होगा। आंसर इज 0.15। तो मैंने इनिशियल में से यानी 1 में से 0.15 माइनस किया तो मेरे पास 0.85 बचेगा एट इक्विलिब्रियम। 3 में से 0.45 यूज्ड अप होगा। लेकिन द यूज्ड अप रिएक्टेंट कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मोलर रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये अलग अलग कैलकुलेट करना है। मेरा एक आसान सा सी एडवाइस ये है कि ऑलवेज डू दिस। ठीक है, प्रोडक्ट के अगर मोल्स आपके पास हैं, किसी रिएक्टेंट के यूज्ड अप मोल निकालने हैं आपको, तो सिंपली आप क्या करोगे बेटा, इक्वेशन लिख के उससे मोलर रेशियो लिखो और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक्स का मतलब मोल्स यूज्ड अप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अब इशू नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप का okay, this is the question again, similar type का question है बेटा। I'm just going to go through this one as well. Look at the question. When 2 moles of PCl5 are decomposed, अच्छा PCl5 decomposed होता है तो PCl3 और क्लोरीन बनता है। सही है, क्लियर? उसने यहाँ पर लिख दिया है इतना मिक्सचर आपके पास क्लोरीन है। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, 5 में से 2 क्लोरीन अलग हो गए तो PCl3 बचेगा। So let's write down the equation PCl5 by a reversible reaction forming PCl3 plus Cl2. ठीक है, 2 moles of PCl5, so initially it's 200. Did they say anything about PCl3 and chlorine initially? No, so it's 00. Clear? उसने कहा at equilibrium mixture एक क्लोरीन कितना है 0.800, ऐसे ही ना। तो PCl3 कितना होगा 1:1 है, तो ये भी इतना ही होगा। ये यूज्ड अप कितना हुआ होगा 2 में से 1:1 है तो 0.80 यूज्ड अप हुआ होगा। ठीक है ना, तो बचेगा कितना 1.2। क्लियर? सो दीज आर हाईलाइट कर लीजिएगा, दीज आर बेसिकली द मोल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अब पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पहले इनके टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.8 विच इज 2.8। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 निकालना है आपको, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकालना है। So which is 1.2 divided by 2.8 multiplied by total pressure, which is 1.00 into 10 power 5। आपके पास पार्शियल प्रेशर आ गया। अब आप केपी की एक्सप्रेशन लिखेंगे।
ठीक है, which is the partial pressure of chlorine multiplied by partial pressure of PCl3 divided by partial pressure of PCl5, all 1:1. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है. And the partial pressure of PCl3 and chlorine in the equilibrium mixture both are इतने. Calculate the value of Kp. तो आपने बोला Kp partial pressure of PCl3 and chlorine 2.86 into 10 power 4 multiply by 2.86 into 10 power 4. अलग अलग हैं, दो बार लिखेंगे, ठीक है. डिवाइडेड बाय योर आंसर इन दिस वन. लेट्स सपोज यहाँ आपका आंसर आया x1, जो भी आंसर आया आप इसे डिवाइडेड बाय x1 कर, ये डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर गिवन था, Kp की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्लियर. और फिर यूनिट कैंसिलेशन करके आपके पास यूनिट आ जाएगा. इन दिस केस यूनिट पास्कल्स आना चाहिए, है ना. ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो इस केस में आंसर पास्कल आएगा. क्वेश्चन नंबर 29 इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है. देखिए, एट अ प्रेशर ऑफ, ओके, टोटल प्रेशर इज गिवन 1 मोल ऑफ दिस मिक्स विद 1 मोल. पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. 2, आपको जरूरी नहीं आप इक्वेशन दोबारा लिखें, दैट्स माय हैबिट ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन बैक अगेन, ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे, ठीक है. फॉर्मिंग 2 SO3 गैस, क्लियर. उसने कहा 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इनिशियली 1 मोल इसके हैं बेटा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्लियर. एंड didn't say anything about SO, so this is 0, clear. This is initial at equilibrium. The final equilibrium was found to contain इतने moles of oxygen. अब ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं बेटा? 0.505, ठीक है. ये ऑक्सीजन के बचे हुए. ऑक्सीजन यूज्ड अप कितना हुआ होगा? कितना हुआ होगा भाई? 1 में से आप माइनस कर दें 0.505, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.495, ठीक है. दिस इज ऑक्सीजन यूज्ड अप, क्लियर. अब हम इस ऑक्सीजन यूज्ड अप से पता लगाएंगे कि सल्फर कितना यूज्ड अप होगा, क्लियर. सो SO2 और ऑक्सीजन इज 1:2. ऑक्सीजन यूज्ड अप कितना है? 0.495. सल्फर डाइऑक्साइड यूज्ड अप कितना होगा? x, यानी आप 0.495 का डबल कर देंगे, ठीक है. तो x की वैल्यू यानी ये यूज्ड अप आ जाएगा 0.99, यानी 1 में से आप माइनस करेंगे 0.99, तो आपके पास बचेगा इक्विलिब्रियम पे कितना है. तो दिस इज 0.01 विच इज रिमेनिंग, ठीक है बेटा. इन अ सिमिलर वे, ये हो गया क्लियर. इस तरह से मोलर रेशियो से आपको बहुत आसानी से आपके पास आ जाएगा. नाउ ऑक्सीजन और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है. ऑक्सीजन इज 1, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज 2. ये मैं कहां से ले रहा हूं? इक्वेशन से, ठीक है, 1:2. नाउ सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यूज्ड अप कितना है? 0.495. तो ऑक्सीजन कितना बने, सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा? उसका डबल, ठीक है, विच इज 0.99. 0.99 आ रहा है ना? मेरे पास कैलकुलेटर बहुत अजीब सा है. यस सर. ओके, तो 0.99, ठीक है. तो दीज आर बेसिकली द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है. तो सल्फर डाइऑक्साइड के कितने हो जाएंगे बेटा? 0.01, सल्फर डाइऑक्साइड के 0.99. That's how you are going to solve this one. Now calculate the partial pressure of oxygen. सबसे पहले total moles निकालिए, which is 0.01 plus 0.505 plus 0.99. सबको ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए आपको टोटल प्रेशर चाहिए होता है. 0.505 प्लस 0.99, 1.505, ठीक है. अब आपको निकालना क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के लिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज 0.505 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1.505 मल्टीप्लाई बाय टोटल pressure. It must be given. Yes, it is given here. You can see 1.50 into 10 power 5. ये आपके पास आ गया, ठीक है. बट इस तरह देखते रहोगे तो जिन बच्चों को इश्यू हो रहा है, ये मेथड अप्लाई करें. जस्ट अप्लाई द मोलर रेशियो, ठीक है. आपको प्रोडक्ट के मोल्स गिवन होंगे, आप मोलर रेशियो लगा के ये पता लगाइए कि इतने प्रोडक्ट के मोल्स बनाने के लिए रिएक्टेंट कितना यूज्ड अप हुआ होगा.
जितना भी यूज्ड अप हुआ होगा, जैसे इस केस में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड 0.99 आ रहा था, तो मैंने 1 में से विच इज द इनिशियल मोल 0.99 जो कि यूज्ड अप हो गया माइनस कर दिया, तो इक्विलिब्रियम पे बचा हुआ आया विच इज 0.01। ठीक है, क्लियर? सो आई होप कि यहाँ तक ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखें, बहुत कॉमनली बच्चे इस एरिया में एरर करते थे, इसलिए कैम्ब्रिज ने न्यू फॉर्मेट न्यू ईयर्स में क्या किया है कि इनको अलग पूछ लेता है और केपी का कॉन्सेप्ट अलग पूछता है। केपी के कॉन्सेप्ट के मार्क्स हमेशा कम होंगे, 1 मार्क का होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो 3-4 मार्क्स का होता है। ठीक है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वो थ्योरेटिकल वैल्यूज के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आसान है, केपी के एक्सप्रेशन लिखोगे, plug in all these values, they are already given, partial pressure is already given। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर? और आपके बाद केपी कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तो एक्सप्रेशन लिखनी है, यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यूनिट, अगर यूनिट अलग से मेंशन नहीं भी हुआ, they didn't ask about the unit, whenever you calculate the kp or a kc value, please always write down the unit। ठीक है, एंड देन अगेन ये सारे वही मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl की बात कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, HCl डिकम्पोज हो रहा है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ही बन रहा होगा, ठीक है ना? सो at temperature above HCl will decompose, a sample of इतने moles of HCl decompose in a sealed container, the resulting equilibrium mixture found to contain इतना क्लोरीन, बाकी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन नहीं गिवन, लेकिन इसने दोनों बातें आपको बता दी, बट यू हैव टू राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। HCl is getting decomposed, there must be no other reactant forming H2 plus Cl2, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, ऐसे ही ना बेटा? नाउ उसने कहा अ सैंपल ऑफ इतने मोल्स ऑफ, यानी इनिशियल मोल्स कितने हैं HCl के? 0.300। डिड दे से एनीथिंग अबाउट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन? नो, 0 0। अब इक्विलिब्रियम की बात आ रही है। द रिजल्टिंग मिक्सचर वाज फाउंड टू कंटेन इतने मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के कितने? 1.50 into 10 power minus 2। हाइड्रोजन के कितने होंगे? सेम, बिकॉज इट इज 1:1। अगर 1:2 होता तो हम वैसे ही मोलर रेशियो लगा के 2 से मल्टीप्लाई करके निकालते। अब पता लगाना है कि HCl कितना यूज्ड अप होगा। ठीक है, सो आप बिल्कुल बच्चों की तरह इसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एरर से बचने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना है। ठीक है, और ये हो जाएगा x, यानी मोल्स ऑफ HCl यूज्ड अप आ जाएंगे आपके पास कितने? ट्वाइस ऑफ दिस, यानी 3 into 10 power 3.0 into 10 power minus 2। ठीक है, और बचे हुए कितने होंगे? 0.3 इक्विलिब्रियम पे माइनस 3 into 10 power minus 2। ठीक है, तो जो भी आपके पास आंसर आ रहा है दैट्स द मोल्स ऑफ HCl एट इक्विलिब्रियम। हमेशा याद रखिएगा, रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट के मोलर रेशियो के बाद जो आएंगे वो यूज्ड अप वाले आएंगे, इनिशियल में से माइनस करोगे तो रिमेनिंग एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस वन। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, टोटल मोल्स हैं, तीनों के मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर आपके पास देखें क्लोरीन के मोल्स भी हैं 1.5 क्लोरीन के भी हैं, 1.5 हाइड्रोजन के भी हैं, दोनों को माइनस करके जो बच रहा है वो HCl का भी है। ठीक है, टोटल मोल्स निकालना। ठीक है, पहले HCl के मोल्स को टोटल से डिवाइड करना, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। हाइड्रोजन के मोल्स को, हाइड्रोजन और क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, उसके बाद मोल फ्रैक्शंस आपके पास यहाँ भी गिवन है। अब वो आपसे बोल रहा है केपी निकालें, तो मोल फ्रैक्शन, ये ब्रैकेट सॉरी टेबल वाले मोल फ्रैक्शन और ये वाला टोटल प्रेशर कितना है गिवन है यहाँ पर? टोटल प्रेशर कहीं ना कहीं गिवन होना चाहिए। नहीं, केपी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी, मोल फ्रैक्शन 30, मोल फ्रैक्शन केपी की एक्सप्रेशन आ गई। Explain why the total pressure of the system does not need to be known for Kp value, because the number of moles on the product side and the reactant side are
equal. There is no effect of pressure on the equilibrium. तो आप लिखेंगे there is no effect of pressure on the equilibrium. ठीक है? अब एक मसला मुझे नजर आ रहा है, वो मैंने भी नोटिस नहीं किया. टोटल प्रेशर नहीं गिवन और केपी कैलकुलेट करना है. तो देखो इधर, केपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होता है ना. पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है? तो लेट्स प्रेशर सपोज अगर हमें कैंसिल आउट हो जाएगा। सर कैंसिल चुप रहो, सरप्राइज खत्म कर दिया मेरा. 0.8 which is a mole fraction multiply by total pressure. ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या है, HCl which is कितना था जनाब, माइनस करके हमने निकाला था कुछ. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा HCl में प्रेशर का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर. तो ये P कैंसिल आउट हो जाएगा. टोटल प्रेशर जब भी याद रखिएगा इन अ सिमिलर वे KC और KP, KC के अंदर वॉल्यूम गिवन नहीं होगा जब आपके वहां मोलर रेशियो बराबर होंगे. ठीक है, और यहाँ पर टोटल प्रेशर गिवन नहीं होगा क्योंकि प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है ना. तो इसलिए आपसे मोल फ्रैक्शन की बेसिस पर भी केपी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट. सब टोटल प्रेशर नहीं गिवन ना, उसकी जगह पी लगा दो भाई, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, बाकी ये SO2 वाला सेम बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको करवाया है, आप उसी तरह करेंगे. आई श्योर यू कि अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा. दैट्स इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. कोई और सवाल है तो बताइए, फिर मैं आपको. अच्छा, लेट मी शो यू समथिंग. इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया होगा, बट कीप इट सेफ एंड सॉल्व इट वंस अगेन. एक दफा और कर लेना ताकि मुझे जो है वो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ध्यान में आ जाए. मैंने कहाँ बनाया था, आई जस्ट मेड सम फाइल. या ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. ठीक है, इन सारे ईयर्स का आपको ऑर्गेनिक का पार्ट सॉल्व करना है. ठीक है, इफ यू डन इट जस्ट हैव अ लुक एट वंस मोर, एक दफा और देख लीजिएगा उसे. ठीक है, सॉल्व ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ऑल दीज ईयर्स एंड अ वेरिएंट. जब मैंने वैसे ही स्क्रीनशॉट ले लिया था इसलिए थोड़ा सा अलग सा फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है. अक्टूबर नवंबर 2021 का ऑर्गेनिक सेक्शन, मई जून 21-23 पेपर का ऑर्गेनिक सेक्शन, विंटर 20 का 22 वेरिएंट ऑर्गेनिक सेक्शन, और विंटर 19, विंटर 19 का 21 और 23 दोनों का ऑर्गेनिक सेक्शन. आई विल बी डिस्कसिंग दिस ऑर्गेनिक सेक्शन इन अपकमिंग क्लासेस. और फिर उसमें जो है वो कुछ चीजें ऐसी हैं, ये थोड़ा सा स्केलेटन में ज्यादा है. तो इफ यू हैव अ गुड, इफ यू थिंक दैट यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनिक, तो आपको एक दफा अलग से सेपरेटली दोबारा से कर लेना. बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कि ये ईयरली पेपर कर चुके हैं, लेकिन अभी आपने दोबारा से सॉफ्ट कॉपी से कर लें. अगर आपने अपनी हार्ड कॉपी पे कर लिया है तो आप स्क्रीन पे कहीं से भी पेपर डाउनलोड कर लीजिए एंड जस्ट सॉल्व दीज ऑर्गेनिक सेक्शंस. ठीक है, clear? So just keeping it till here until our next class, which is inshallah going to be held tomorrow. Question है तो पूछ लीजिए please.